Welcome to the channel, guys. My name is Sachin and this is our very first video on this channel, and this is also kind of a inaugurative video for our channel. So before actually starting with the topic, I'll just give a quick introduction of mine. Okay, so my name is Sachin and I'm a software developer. And as I'm a software developer, so the topics that we would be majorly covering in our videos would be more around software, would be more about, let's say, AI, ML, latest techs that are happening, the latest development that are taking place, and all the topics will not just be going through theoretically or conceptually, but actually how that thing is working, what is the practicality of it, the physical nature of all the things that we are discussing. I mean, if I am talking about, let's say, if we are talking about, let's say, coding, so it's not just about a software thing. I'll be explaining you what actually happens when you code at the software level, at the physical level, so that you have a 360-degree understanding of the topic that we'll be discussing. Okay, so this is about me and this is about the channel. So let's start with our very first video, with our very first topic. And our very first topic is very interesting. I mean, I have chosen this topic for this first video. So this is quantum computing. And to understand this topic, it is mandatory to understand what is quantum mechanics, because that is one thing of which this quantum computing thing is taking advantage to work. Okay, so before actually understanding quantum computing, we'll understand what is quantum mechanics, what is quantum physics basically. So why I'm saying this topic is very interesting is because what this topic is like, what should I say? I mean, if you're a curious person, so it would be like you would like to know about nature of things, how things are actually happening around us. So it is more about that thing, the physics kind of thing. So it's not just the software thing. It would be telling you how particles exist, their nature, their quantum nature, and how then this quantum computing thing is taking advantage of that thing, and till where we have reached in quantum computing, and how fast it can actually process, how it is able to actually process, what was the problem with the traditional things that we were using. So all these kind of things, all these topics we'll be discussing about, but let me just give you a clear idea how we will be approaching this thing, or how we will be moving in our video step by step. So the first thing that we'll be covering is why. I mean, why anything is made, why anything is invented. It is obviously invented to solve some problem, right? So we'll be discussing why this thing came into existence, this quantum computing thing came into existence. Second is we'll be talking about what it is, how it actually works. So this why, then what, and then how. So this will be our approach, this will be our way of moving forward in our video, and I'll keep this thing in mind, that at each step I am able to explain you with proper detail, so that we don't have any confusion at the end of the video. And at the end of the video we will be coding one quantum program, and that will be obviously coding not in our systems, but we'll just send a code to IBM's quantum computer, and then it will provide us with the response. Okay, so I think now it's time to understand how it actually works. So what we'll be doing is we'll be understanding it through some slides, or I'll be sharing my screen. So I'll now just go in the background and let's start with the video. Thank you. Okay, so now we'll discuss why. We'll start a topic from here. Okay, सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, that what was the thing that led to the idea for the invention of this quantum computing. तो सबसे पहले to understand this thing we'll have to understand classical computing. Okay, so classical computing क्या है जो हम अभी अपनी systems पे कर रहे हैं, like I'm having this computer, okay, and I'm having this CPU. इसके अंदर मेरा प्रोसेसर है, इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे. ओके, सो दिस इज गॉट बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. हाउ मैनी? नॉट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, बट बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ओके, अब दो क्वेश्चन, क्या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैसे आ सकते हैं इतनी सी चिप के अंदर? और दूसरा क्वेश्चन कि ठीक है ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बट वॉट, वाई वी आर डिस्कसिंग इट. तो आई टेल यू, हमारा जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स.
ओके, बिट्स क्या होते हैं? बिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारा कंप्यूटर समझता है। हमारा कंप्यूटर ABCD नहीं समझता है, हमारा कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं समझता है। ओके, जो भी स्क्रीन पे कुछ चल रहा है वो सब कुछ नहीं समझता है। इट जस्ट अंडरस्टैंड्स 0 and 1 बस। तो फिर योर क्वेश्चन वुड बी, क्या फिर जितनी सारी चीज़ें दिख रही है वो कैसे? क्योंकि वो 0 and 1 की कॉम्बिनेशन से बनती है। इट वुड बी समथिंग लाइक कि अगर मैंने 4 बार 0 लिखा तो इसको वो पढ़ेगा A। इट वुड बी समथिंग लाइक अगर मैंने इसको इस कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो इसको वो पढ़ेगा B। आई मीन ऐसा नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया। ओके, तो ऐसा कुछ कोडेड होता है जिससे हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है कि ओके, अगर ये इस कॉम्बिनेशन में है, ये इस पैटर्न में है तो इसका मतलब ये है, इस पैटर्न में है तो इसका मतलब ये है। ओके, तो ये हो गई बिट्स की बात। तो बिट्स कैन ओनली बी 0 and 1। ओके, जो हमने अभी देखा कि कंप्यूटर में जो बिट्स हैं वो सिर्फ 0 and 1 के फॉर्म में हो सकती हैं, बट 0 and 1 के फॉर्म में भी कैसे हो सकती हैं? मतलब 0 फिर उसको 0 और 1 कैसे समझ में आ रहा है? एक्चुअल में समझ कैसे आ रहा है? अगर हम और डीप में जाएं तो फिर 0 और 1 क्या? क्योंकि अभी हमने बोला कि उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नंबर समझ में नहीं आता है ना? तो फिर भाई 0 and 1 के साथ ऐसी क्या स्पेशल दोस्ती है कि उसको 0 and 1 ही समझ में आ रहे हैं? तो एक्चुअली इट इज़ नॉट 0 and 1, इट इज़ लाइक दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर, जो हमने भी ट्रांजिस्टर्स की बात की थी। व्हेन दिस अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, लेट्स से ये करंट है, इसने अलाउ किया तो इट इज़ टर्म्ड एज 1। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट बट ये अलाउ नहीं करता है, देन इट इज़ टर्म्ड एज 0। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। अगर इफ़ इट इज़ होल्डिंग अ चार्ज तो इट इज़ 1, इफ इट्स नॉट होल्डिंग अ चार्ज देन इट इज़ 0। तो द कंसेप्ट बिहाइंड 0 and 1 इज दिस। ओके, और ये किसके थ्रू हो रही चीज़ें? ट्रांजिस्टर के थ्रू। एंड देर आर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इफ देर आर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सो आई मीन आई कैन रिप्रेजेंट बिलियंस ऑफ बिट्स। ओके, नाउ योर क्वेश्चन वुड बी, तो या फिर तो ये बहुत फास्ट है क्योंकि बिलियंस तो आई मीन बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज देर आर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। या दे आर फास्ट, आई मीन तो कंप्यूटर्स हमारे पास अभी हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो फास्ट नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट। बट a domain of study, a domain of experimentation, a domain of everything is constantly growing and is growing exponentially. The data is growing exponentially, everything is growing exponentially. Now this AI thing is coming. So वहाँ पे भी क्या है? You need to train it on a lot of parameters, like billions and trillions of parameters. So कहीं ना कहीं there's a need for a system where we want a computer which can actually handle and process this much data in an efficient way and in a faster way. Okay, so now we'll understand ki if there's need for this thing, what can we do? I mean, what would have been my general approach? See, when we have something, तो what should be our first approach? To actually उसी चीज़ को हम बेटर करें, to improve that thing, right? और यही चीज़ पहले की गई थी, to actually improve that thing. Okay, but now we'll understand that what are the constraints, कि हम किस लेवल पे जाके अटक जाएंगे या कहाँ पे हम रुक गए, that we cannot proceed further with this classical computing thing. Okay, so we'll now understand what was the problem with this thing. Okay, so here are the problems. First of all, एक अप्रोच रखते हैं, डेटा इज एवर ग्रोइंग। ओके, डेटा इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। तो हम क्या ये नहीं कर सकते दैट वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स? या वी कैन डू दैट, बट द प्रॉब्लम इज डेटा, लेट्स से दिस इज अ डेटा. Just for example, I have 5 pieces of data, okay, and there are 5 transistors to represent it, let's say 5 bits. But now the problem is not that data is growing from 5 to 10 or to 20. It is growing exponentially. It is 25, 625, like that. I mean, even more than that. तो वहाँ पे आप कितने ही ट्रांजिस्टर्स को बढ़ाओगे? I mean, there would be a point जहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को that chip would not be sufficient to actually hold that much of transistors. या तो आपको उसके साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? दिस नो लिमिट, बिकॉज डेटा इज एवर ग्रोइंग, राइट? तो अगेन या तो फिर हम उस एरा में चले जाएं व्हेन द कंप्यूटर साइज वॉज ऑफ दैट ऑफ अ रूम, ठीक है, बट देन अगेन इट वुड बी कि एक जगह से आगे गए और एक जगह से वापस पीछे हो गए. तो वी कैन नॉट डू दैट थिंग. वी हैव टू ऑल्सो सी दिस थिंग कि जो कंप्यूटर्स हैं, जो सिस्टम्स है, जो अंडरलाइंग डिज़ाइन है, दैट हैज़ टू बी कॉम्पैक्ट. वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट थिंग.
तो दिस इज वन थिंग. सो साइज को हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हम नहीं बढ़ा सकते हैं. देयर वुड बी अ लिमिट टू दैट. इसके साथ साथ में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स के साथ में ये है जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के साथ में है, ओके, दैट इज when there are a huge number of transistors, so it actually dissipates a lot of heat. Okay, जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतने ज़्यादा हीट को वो डिसिपेट करेगा. एंड व्हेन इट एक्चुअली डिसिपेट्स हीट, तो यू नीड पावरफुल कूलिंग सिस्टम्स. ओके, और इस पावरफुल कूलिंग सिस्टम को अगेन यूज़ करने के लिए देन यू नीड मोर पावर. तो फिर से cost inefficient हो गया. Okay, so these are the factors. Then one is this reason. Second is, ठीक है, एक अप्रोच तो ये थी कि हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंक्रीज कर लें. सेकेंड अप्रोच कुड बी, कैन वी डू समथिंग कि जो हमारी चिप का साइज है वो उतना ही रहे, बट द ट्रांजिस्टर्स वी कैन एकोमोडेट मोर ट्रांजिस्टर्स इन द सेम चिप. तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साइज़ को, चिप के साइज ट्रांजिस्टर्स के साइज़ को हम और छोटा कर लें. बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, ट्रांजिस्टर्स आर ऑलरेडी एट द लेवल ऑफ एटम, दे आर ऑलरेडी एट द साइज ऑफ एटम. ओके, सो अगर आप उसको और छोटा करोगे तो इट वुड गो टू द साइज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. तो अब अगर वो उस साइज का चल जाता तो इट हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड द रियल्म ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है, वो ऑलरेडी उस रियल्म में जा चुका है. बट नाउ द प्रॉब्लम विद दैट थिंग इज इट इज़ नॉट 100% इन आवर कंट्रोल. वी कैन कंट्रोल दिस ट्रांजिस्टर्स 100% जो अभी हैं with that size. It is still under 100% human control. But at that level, when it crosses a certain size, वहाँ पे it is not 100% under our control. So we cannot say that that system would be foolproof. Okay? तो एक ये प्रॉब्लम है विद साइज. तो देयर वुड हैव बीन टू अप्रोचेस एंड वी हैव सीन कि दोनों में प्रॉब्लम क्या है. ओके, नाउ एज वी हैव सीन द प्रॉब्लम, सो नाउ देयर इज अ नीड फॉर समथिंग दैट can actually help us to keep up with the ever-growing data. Okay, so now what we'll do is we'll just go through the slide and we'll try to understand the basics of it. First, we'll just understand a bit of theory part of it, and then we'll move on to the practical side of this thing. So starting with, what are quantum computers? So definition goes as, quantum computers use the principles of quantum mechanics to perform calculations that would be impossible for classical computers to handle efficiently. Then there are some key points. Classical computers process data in bits, that we have already seen. The quantum computers process data using qubits. So this is a new term, qubits. We'll come to this. Yeah, qubits, and we'll come to this. Okay, so which can represent both 0 and 1 simultaneously. This is something new, and this is a fundamental, or you can say a core concept of this quantum computing thing, which is it can represent both 0 and 1 simultaneously. मतलब ये तो 0 होती है कोई चीज़, या 1 होगी, राइट? जैसे हम क्लासिकल बिट्स में पढ़ रहे थे, ये तो करंट को होल्ड करेगी या नहीं करेगी. बट हेयर इट इज सेइंग इट कैन रिप्रेजेंट बोथ 0 and 1 simultaneously. ना वो हो कैसे रहा है, we'll see that. Now, hence, quantum computing harnesses superposition and entanglement to perform computations in ways classical computers cannot. Now, here are two terms, that is superposition and entanglement. We'll see these words, what is the meaning of these words. Here's a comparison between classical versus quantum computing. Classical computers, then we'll just go through, it is like what we have already discussed. Okay, now here's the main thing, that is qubits and superposition. Now, what is qubits? The fundamental unit of quantum information. Unlike a classical bit that is either 0 or 1. जैसे classical bits में अपने पास क्या होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है. But a qubit can be in a superposition of both 0 and 1 simultaneously. For example, a qubit can be 50% 0 and 50% 1 at the same time. Now, how is this possible? बेसिक एक है ना, एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में यार कि ठीक है 0 and 1 समझ में आता है, बट 50% 0, 50% 1, व्हाट इज दिस? सो विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके, सो सुपरपोजिशन, थिंक ऑफ अ क्यूबिट एज अ कॉइन spinning in the air.
इट्स बोथ हेड्स एंड टेल्स अंटिल इट लैंड्स। मतलब हम क्यूबिट को ऐसे सोचें जैसे कि व्हेन यू आर स्पिनिंग अ कॉइन, तो जब हम कॉइन को स्पिन करते हैं तो एट द टाइम व्हेन इट इज़ एक्चुअली स्पिनिंग, तो उस टाइम पे ना वो हेड है ना टेल है, राइट, वो वहीं बीच में ये स्पिन कर रहा है। तो जब तक वो लैंड नहीं करता तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट्स सर्टेनिटी। तब तक एक सर्टेन स्टेट नहीं है कि यार हेड है कि टेल है, ठीक है। वैसे ही अ क्यूबिट इट कैन बी लाइक दैट स्पिनिंग कॉइन, जो हेड भी है और टेल भी है, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ में। जैसे हम कॉइन को स्पिन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा हेड, जब हम स्पिन कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर पर्टिकुलर व्यू, तो वहाँ पे 70% हेड हो, इतना टिल्ट हुआ हो, और 30% टेल हो, तो उस टाइप से समथिंग, ठीक है। देन here is quantum entanglement. Entanglement is a phenomenon where qubits become linked such that the state of one qubit directly affects the state of another, even if they are separated by large distances. Okay, so यहाँ पे इसका कहने का ये अर्थ है कि entanglement के द्वारा क्या हुआ, क्या हो रहा है। यार my tongue got entangled actually. So entanglement के द्वारा क्या हो रहा है, तो entanglement is a phenomenon where qubits become linked such that the state of one qubit directly affects the state of another. यहाँ पे when we change the state of one qubit, तो ये जो दूसरा qubit है, और हो सकता है वो कितनी भी डिस्टेंस पे हो, इट कैन बी फार अवे, इट कैन बी माइल्स अवे, बट जैसे हम यहाँ पे इस क्यूबिट की स्टेट को चेंज करते हैं, वो वहाँ पे चेंज होता है। आई नो इस पॉइंट पे इफ़ यू आर सीरियसली कमिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, तो आपके माइंड में साथ क्वेश्चंस आएंगे कि यार बट होता क्या है क्यूबिट, मतलब समझाओ तो, ठीक है कंसेप्चुअली समझ आ रहा है, बट ये है क्या, मतलब बिट तो समझ में आ रहा है, ट्रांजिस्टर थिंग, बट व्हाट इज़ क्यूबिट। सो गाइस जस्ट गिव मी 1 minute, विल कम टू दैट, ठीक है। पहले बस मैं एक टर्मिनोलॉजी से आपको थोड़ा सा एक्वेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, जब हम उसको एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, फिर ये वर्ड्स आपके माइंड में आने चाहिए। आई मीन इट शुड नॉट फील जार्गन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद instantaneous connection, when the state of one qubit is measured, the state of the other entangled qubit is immediately known, जो हमने अभी पढ़ा, जब दोनों एक जैसे चेंज हो रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसकी स्टेट भी वैसे ही अफेक्ट हो जाएगी, तो फिर उसकी स्टेट भी हमको पता चल जाती है, क्योंकि उसकी स्टेट भी फिर इसी रिलेशन में कुछ होगी, ठीक है। नाउ 2 qubits entangled in superposition can represent 4 possible states 0 0 0 1 1 0 1 1 simultaneously, but अपने जो क्लासिकल बिट्स हैं इट कैन नॉट रिप्रेजेंट साइमल्टेनियसली, इट कैन रिप्रेजेंट 1 by 1, या तो 0 0 या तो 0 1, एक पॉसिबिलिटी 1 0, एक पॉसिबिलिटी 1 1। हेयर ऑल्सो आर पॉसिबिलिटीज लाइक दिस, बट दे आर साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स, ये सर्टेन स्टेट में नहीं है, राइट। इट अलाउज फॉर मोर पावरफुल पैरेलल कंप्यूटेशन। दिस इज समथिंग दैट काइंड ऑफ गिव पावर टू दिस क्वांटम कंप्यूटर, कि ये एक साथ में पैरेलल कंपटीशन कर सकता है। क्यों पैरेलल कंपटीशन कर सकता है? क्योंकि एक साथ में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को देख लेता है एक साथ में। इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे इसको ऐसा समझते हैं कि यार लेट्स से हाँ, जैसे एक टॉर्च है, ठीक है, अपने पास एक टॉर्च है और 10 बुक्स रखी हुई हैं। तो मैंने क्या किया, टॉर्च को जैसे ऑन किया तो वैसे ही उसने सिर्फ, मतलब जो उसकी लाइट है वो सिर्फ एक बुक पे पड़ रही है, तो आप एक बुक को देख सकते हो। फिर मेरे को टॉर्च को मूव करना पड़ेगा दूसरी डायरेक्शन में, फिर वो दूसरी बुक पे पड़ेगा तो फिर आप दूसरी बुक को देख सकते हो, फिर तीसरी बुक पे उसकी लाइट पड़ेगी तो आप तीसरी बुक देख सकते हो। तो मतलब ऐसे एक साथ वो सब पे नहीं कर सकता। बट क्वांटम कंप्यूटर थिंग इज समथिंग लाइक कि जैसे ही आपने टॉर्च ऑन किया, उसकी जो लाइट है वो 10 के 10 बुक्स पे एक साथ पड़ गई पैरेलली, तो आप 10 के 10 बुक्स को एक साथ देख सकते हो। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इसको ऐसा समझो। उसके बाद क्वांटम गेट्स एंड क्वांटम सर्किट्स। तो जैसे अपने क्लासिकल गेट्स होते हैं, है ना, नॉट गेट्स, ऑर गेट, एंड गेट, तो ऐसे ही अपने क्वांटम गेट्स भी होते हैं। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस यूज्ड टू मैनिपुलेट क्यूबिट्स सिमिलर टू क्लासिकल लॉजिक गेट्स। इसमें हदुमर्द गेट होता है, हदुमर्द, आई थिंक इट इज़ प्रोनाउंस्ड एट हदुमर्द समथिंग मे बी, या। सो इट क्रिएट्स सुपरपोजिशन। इसको हम यूज़ करते हैं टू एक्चुअली initialize a qubit into the state of superposition. Then this polyx gate flips the state of a qubit. जैसे कि अगर लेट्स से हम बात करें क्लासिकल बिट्स की, तो जैसे 0 है तो उसको 1, जैसे नॉट का काम होता है, ओके। देन क्वांटम सर्किट्स, quantum computers perform operations using a series of quantum gates creating a sequence of transformations on qubits.
नाउ देयर आर क्वांटम स्पीड अप एंड पैरेललिज्म। तो यार आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरी पार्ट, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग ये देख लेना। बट अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़। अभी तक तुमने थ्योरी पढ़ ली थोड़ा बहुत, वी गॉट एक्वेंटेड विद द टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस। अब हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली कि फंडा क्या है, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द next screen. Okay, so now we'll discuss about qubits. So a qubit can be an electron, a photon, or it could be an ion. Okay, now not just this, it could be a particle which have got quantum properties. Sorry about my handwriting, guys. So now why we are saying these particles, because they've got some quantum properties, okay, and this is why we use these particles. तभी तो हम इसका advantage लेके we can actually perform quantum computation. So if I take example of an electron, so this is an electron, okay, it has got a spin up and a spin down. So what we do is, when we actually process it, or when we actually use it in a computation, what we're trying to do is we are trying to manipulate its state. हम इसको manipulate करते हैं to check all the possibilities. And when we are saying it could be 0, it could be 1. So for example, let's say this is 1, this is 0, and it could be in a possibility of both the states. इसको ऐसा समझो जैसे let's say, okay, I'll tell you, let's say ये spin up की state है, okay, और ये स्पिन डाउन की स्टेट है. सो योर क्यूबिट वुड बी समवेयर हेयर, इट वुड बी समवेयर हेयर, ठीक है. इसको ऐसे समझो, it could be here also, it could be here also, it could be in between a 15% spin up, 15% spin down, or it could be here 80% spin up, 20% spin down. Similarly in a possibility of states, जैसे हमने कोइन का एग्जाम्पल देखा था, हेड एंड टेल्स. तो जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी एक्चुअली स्पिनिंग इट, तो क्या हो रहा है, ओके विल जस्ट डू वन थिंग. ये कॉइन है हेड टेल्स, व्हेन वी आर स्पिनिंग इट इन द एयर, तो जब ये स्पिन कर रहा है बीच हवा में, तो हम नहीं बोल सकते दैट इट इज़ इधर हेड और टेल, राइट. उस टाइम पे आप क्या ही बोल सकते हो, यू नॉट से फॉर सर्टेन ना कि हाँ यार यही है, इसकी स्टेट हेड से टेल से है. इट इज़ एन पॉसिबिलिटी, इट कुड बी लाइक, अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से देख रहे हो तो इट कुड बी लाइक 50% हेड वहाँ पे और 50% टेल. तो इट कुड बी इन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है. तो इसलिए वी कैन नॉट से फॉर श्योर एट सुपरपोजिशन स्टेट. इसको कहते हैं स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन मतलब मल्टीपल स्टेट्स साइमल्टेनियसली. देन वी से अ क्यूबिट इज इन superposition when it is both 0 and 1 simultaneously, then a qubit is said to be in a superposition. तो इसको याद रखना, जो हमने सुपरपोजिशन पढ़ा था ना अभी, दिस इज सुपरपोजिशन. नाउ हाउ इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, मतलब यार 0 1 तो समझ में आता है कि कोई चीज़ 0 है या 1 है ना. इधर इट इज़ ऑन, इट इज़ ऑफ, इधर इट इज़ अलाउइंग करंट टू पास थ्रू इट और नॉट अलाउइंग. बट ये क्या है, मतलब कि हाफ करंट अलाउ कर रहे हो. तो इसका कंसेप्ट जो है, it is like there's a real nature of particles. When we talk about wave particle theory, तो वहाँ पे भी हम क्या बात करते हैं, we are saying that when we observe or when we measure particle, then it is particle, but otherwise it is not a particle, it is a wave. जो अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था फिजिक्स में, हमने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना. तो वहाँ पे जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, when there was no observer, तो वहाँ पे द पार्टिकल बिहेव्ड एज अ वेव, बट व्हेन देयर वाज एन ऑब्जर्वर इट बिहेव्ड एज अ पार्टिकल. यहाँ पे भी इट इज़ समवट लाइक व्हेन देयर इज नो मेजरमेंट, व्हेन वी आर नॉट मेजरिंग इट, व्हेन वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग ऑन इट, तो इट इज़ इन अ क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज. इट इज़ साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स, बट व्हेन वी आर मेजरिंग इट, तब जाके इट इज़ टेकिंग अप अ सर्टेन फॉर्म. ऐसा समथिंग लाइक दिस कि जब हम उसको देख रहे हैं तो वो एक सर्टेन फॉर्म ले रहा है, तो वो एक सर्टेन स्टेट पे आ रहा है, अदरवाइज इट इज़ अनसर्टेन. तो अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस नेचर वी यूज देम.
इन अ क्वांटम कंप्यूटिंग थिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लाइक बिट्स यू हैव टू, इट इज सर्टेन इधर इट इज 0 और इट इज़ 1. यहाँ पे दे आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बट दे आर साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं है कि मल्टीपल में भी कि ये हो कि अलग अलग, नहीं, साथ साथ में. इट इज़ लाइक इफ आई हैव टू शो यू समथिंग, तो इट इज़ लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टॉर्च, ओके, टॉर्च है और यहाँ पे मेरे पास में बुक्स हैं, ये बुक्स हैं, लेट से 3 बुक्स हैं मेरे पास, ओके. तो क्लासिकल कंप्यूटिंग की बात करूँ तो व्हेन आई टर्न दिस टॉर्च ऑन, तो यहाँ पे जो इसकी रेज आएंगी तो उसने इसको लाइट अप किया, इस बुक को, बुक नंबर 2, दिस वन सेकंड बुक. तो आपने सेकंड बुक को देखा, फिर लेट से आपने क्या किया, आपने इस बुक को यहाँ से रिमूव किया और फर्स्ट बुक को यहाँ पे लेके आ गए. तो फिर मैंने टॉर्च लाइट अप किया, ऑन किया, तो फिर ये वाली बुक लाइट अप हो गई. तो आपने फर्स्ट बुक को देख लिया, फिर मैं इसको रिमूव किया, फिर थर्ड को लाया तो थर्ड आपने देख ली. बट इन द केस ऑफ what you say quantum computing, you cannot say something like this. In the case of quantum computing, what actually is happening is, जैसे आपने इसको ऑन किया, this is it, एक साथ तीनों की तीनों बुक्स लाइट अप हो गई एंड यू कैन सी ऑल 3 बुक्स टुगेदर. यानी कि तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ में देख लिया. तो यही क्वांटम कंप्यूटर करते हैं, यही के पीछे का फंड है, दैट इट कैन सी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली, बिकॉज जो उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, द क्यूबिट्स, दे कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली. तो आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को साइमल्टेनियसली देख सकते हो एंड देन व्हाट वी डू इज, जो पॉसिबिलिटी हमको सही लगती है, व्हेन इट ट्राइज टू फाइंड आउट द रिजल्ट, उसको एम्पलीफाई किया जाता है यूजिंग सर्टेन एल्गोरिथम्स, यूजिंग सर्टेन ऑपरेशंस, यूजिंग सर्टेन गेट ऑपरेशंस. ओके, जैसे अपना क्लासिकल कंप्यूटर्स में गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, लॉजिकल गेट्स, वैसे here we have also got some gates like Hadamard gate, it is something, ठीक है, like this gate is there, one gate is there. The work of this gate is to put qubits in a superposition of states. ठीक है, तो ऐसे क्या जाता है. नाउ तो बोलने में समझ आ गया है कि क्यूबिट्स को वी कैन पुट इट इन सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स, बट हाउ, मतलब एक्चुअल में हम उसको कैसे चेंज कर रहे हैं. सो इट इज़ लाइक यार, जैसे इसकी स्टेट है, ओके, तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट बाय यूजिंग सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया या टेम्परेचर कम कर दिया. तो उस सब चीज़ों की वजह से सर्टेन जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से इसकी स्टेट पे फ़र्क पड़ता है, एंड दैट्स हाउ वी ट्राई टू मैनिपुलेट इट्स स्टेट. तो वही क्वांटम कंप्यूटर का फंडा है. उसके अंदर क्यूबिट्स होते हैं विच आर एक्चुअली ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, और फिर वहाँ पे क्या क्या आता है, इसकी स्टेट्स को चेंज किया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स. उसको वैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जाके, जहाँ पे उसके एनवायरनमेंट को बार बार चेंज किया जाता है ताकि इसकी स्टेट बार बार चेंज हो और हम इसकी स्टेट को मैनिपुलेट कर सकें, सो दैट वी कैन परफॉर्म आवर कैलकुलेशन. तो दिस वॉज अबाउट क्यूबिट्स. सुपरपोजिशन को भी हमने डिस्कस किया. एंटेंगलमेंट इज, एक क्यूबिट है, अगेन वी विल टेक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, ओके, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2. यहाँ पे जैसे मैं इसकी स्टेट को चेंज करता हूँ वहाँ पे इसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है. इट कुड बी लाइक माइल्स अवे, हो सकता है एक कंट्री में हो, दूसरे कंट्री में हो, उस कहीं भी हो, बट व्हेन दे आर एंटेंगल्ड, जैसे ही हम इसकी स्टेट को चेंज करेंगे इसकी स्टेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, बिकॉज दे आर एंटेंगल्ड, दे आर लाइक व्हाट यू से काइंड ऑफ पार्टनर्स यू कैन से. जिसको पता चल रहा है कि अगर इसकी स्टेट चेंज हो रही है तो वो अपनी स्टेट भी चेंज कर लेगा, तो उसकी स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रही है. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से भी क्या होता है, इससे वी कैन परफॉर्म पैरेलल कंप्यूटिंग. हमको उसकी भी स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो इट कुड बी समथिंग लाइक कि जैसे ही यहाँ पे किस चीज़ पे हम कुछ ऑपरेशन करते हैं तो वी नो कि इसका इफेक्ट वहाँ पे क्या होगा. गॉट इट. तो हमको एक ही चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन मेक these both qubits entangle and then when we are changing property of this one thing, तो इसको भी यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं. फ्रॉम वन ऑपरेशन वी कैन कंट्रोल 2 थिंग्स.
एंड नॉट जस्ट टू थिंग्स, अगर हम मल्टीपल को इंटेंगल कर ले तो उन सब की स्टेट्स वैसे ही चेंज हो जाएगी. सो दिस वॉज अबाउट क्यूबिट्स, सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट. तो जो भी हमने अभी तक देखा उसको हम एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक है पूरा अच्छे से समझ में आ जाए. जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या चीज़ें. क्यूबिट्स हमने देखा था, ठीक है, दैट क्यूबिट्स कैन बी मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, आयन, फोटॉन्स, और इट कुड बी मेड फ्रॉम एटम्स. तो जो भी पार्टिकल्स है विच हैव गॉट सम क्वांटम प्रॉपर्टीज लाइक सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, जो एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एक्सिस्ट कर सकते हैं. जैसे कि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन में जब वो हमने वे पार्टिकल ड्यूअलिटी वाला जो है अपना पूरा एक फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है वो एक साथ वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है. तो ऐसे कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज क्यूबिट्स. ओके, नाउ यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देखा था. जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इट हैज़ गॉट स्पिन अप एंड स्पिन डाउन. तो हमने देखा था जो हमारी क्लासिकल बिट्स हैं, क्लासिकल बिट्स में इट कुड बी इधर 0, इट कुड बी 1, बट यहाँ पे लेट्स हम इसको 0 और इसको 1 कह रहे हैं. ओके, बट यहाँ पे क्वांटम में वी आर सेइंग इट कुड बी 0, 1 और बोथ साइमल्टेनियसली. जब हम बोथ साइमल्टेनियसली कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम 0 और 1 पूरा ही साथ में है. मतलब इसको ऐसा मतलब इसको ऐसा समझो कि ये प्रोबेबिलिटीज़ में है. जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, इट इज़ समवेयर हेयर, इट कुड बी 50% 0, 50% 1. यहाँ पे है तो इट कुड बी व्हाट 80% 0, 20% 1, समथिंग लाइक दिस. ये क्या है, प्रोबेबिलिटी में है 0 और 1 के साथ साथ में. कैसे है, क्योंकि लेट से जैसे कि अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो वहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है लेट से, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को हम 0 कह रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट को हम 1 कह रहे हैं. ओके, तो जैसे उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने लेट्स यहाँ से यहाँ पे जंप किया तो ये कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया. तो 0 से 1 पे जंप कर गया, तो उसने स्टेट को चेंज कर लिया. बट व्हेन वी पुट इट इन अ सुपरपोजिशन स्टेट तो यहाँ कहीं यहाँ बीच में है. अभी कैसे ये एक्चुअल में बीच में नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं आधा एक्साइटेड में है या आधा ग्राउंड में. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. इट इज़ क्लियर जब एक हम ये देखते हैं कि इट हैज़ गॉट अ वेव नेचर ऑल्सो व्हेन नो वन इज़ ऑब्जर्विंग इट. और हम यही कह रहे हैं कि जब हम इसको नहीं देख रहे हैं, जब इसको मेजर करते हैं, देन इट कम्स इनटू सर्टेन फॉर्म, तभी एक सर्टेन स्टेट में आता है. अदरवाइज इट इज़ इन सुपरपोजिशन, इट इज़ इन अ क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. तो वहाँ पे क्या है कि इट हैज़ गॉट सम वेव नेचर, राइट. तो वेव में क्या है, लाइक इट इज़ लाइक अ वेव. तो ये कहीं इट इज़ जस्ट हैव एन इमेज ऑफ वेव काइंड ऑफ थिंग. तो क्या है कि वेव एक साथ ऐसे 0 और 1 को कवर कर रही है, मतलब वो कहीं 0 और 1 साथ साथ में चल रहा है, ये कहीं बीच में नहीं है, ठीक है, ऐसा टिपिकल बीच में नहीं है, बट इट इज़ गॉट अ वेव फॉर्म. तो वो दोनों एनर्जी लेवल्स को साथ साथ में लेके चल रहा है, ठीक है. तो हो सकता है कि 50% इस वाले को, 50% इस वाले को, तो अलग अलग टाइप से. इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 भी है, 1 भी है, और 0 1 साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, ठीक है ना. इतना क्लियर है. नाउ विल सी एन एल्गोरिथम जो है ग्रोवर्स एल्गोरिथम, एंड इट इज़ अ फेमस एल्गोरिथम इन क्वांटम कंप्यूटिंग. ओके, तो यहाँ पे वी हैव 4 नंबर्स लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं फॉर अ नंबर, वी ट्राई टू फाइंड अ नंबर इन एन अनसॉर्टेड डेटाबेस, ठीक है. तो लेट्स से अनसॉर्टेड है, अभी मैंने ऐसे 1 2 3 4 लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बट लेट्स से ये अनसॉर्टेड डेटाबेस है. ओके, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ नंबर. तो लेट्स से अगर हम 1 को फाइंड करें तो क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेप में मिल जाएगा. 4 को फाइंड करेंगे तो फोर्थ स्टेप में, सेकंड 2 को करेंगे तो सेकंड में, 3 को करेंगे तो थर्ड स्टेप में फाइंड हो जाएगा. तो बेस्ट केस में क्या है कि एक स्टेप में हमारा काम हो गया. वर्स्ट केस में क्या है, हमको 4 स्टेप्स चलने पड़े. ओके, बट नाउ लेट्स से अगर डेटाबेस बहुत बड़ा है, अगर छोटा है तब तो क्लासिकल कंप्यूटिंग इज़ बेस्ट, और क्वांटम कंप्यूटिंग होता ही यूज़ वहाँ पे जहाँ पे वी गॉट अ ह्यूज डेटाबेस थे. तो अगर बहुत बड़ा है, लेट्स से 10 लाख करोड़ वैल्यूज़ हैं समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पे क्या है, it helps us, this nature of qubits helps us. Which nature? This nature of in a state of superposition. इसको ऐसा समझो कि जैसे हमने बात करी थी कि क्यूबिट 0 भी है, 1 भी है साथ साथ में, और साथ साथ में 0 और 1 की पॉसिबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है ना. 0 और 1 साथ साथ में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली, ठीक है. तो इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट से हमने नंबर देखे थे 1 2 3 4, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, जैसे हम क्लासिकल में भी रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, लेट्स से. और लेट्स मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, 3 कह रहा हूँ, 4 कह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल
तो क्लासिकल में अगर हम देखें तो क्लासिकल में हम कैसे चलेंगे, क्लासिकल में विल मूव लाइक, सबसे पहले इस पे गए, अगर ये है जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है ये है, तो पहले यहाँ पे चेक किया, ठीक है, लेट्स से मुझे फाइंड करना है 4, तो इसने पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, क्योंकि सर्टेन है, स्टेट पता है 0 0 है, पहला बिट भी 0 है, दूसरी बिट भी 0 है, तो जब दोनों बिट 0 होते हैं तो हम 1 कह रहे हैं, ठीक है, जब दूसरी तो उसको हम 2 कह रहे हैं, इसको हम 3 कह रहे हैं, इसको 4 कह रहे हैं, तो यहाँ पे सर्टेनिटी है, तो यहाँ पे हम जब आंसर भी फाइंड कर रहे हैं तो आंसर हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है, पहले इसको चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, तो फोर्थ स्टेप में हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल इन क्लासिकल कंप्यूटिंग। बट जब हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पे क्या है, क्यूबिट्स में 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे क्या है, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन साइमल्टेनियसली, यानी कि चारों की चारों स्टेट साथ में दिख रही हैं। कैसे साथ में दिख रही हैं, जैसे मैं टॉर्च वाला एग्जाम्पल लिया था, कैसे टॉर्च ऑन किया तो चारों बुक्स एक साथ दिख गई, एक साथ चारों पे लाइट पड़ गई, तो हमने चारों को देख लिया। अब हम कह तो रहे हैं चारों को देख लिया, बट कैसे, क्योंकि जब हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं ज़ीरो, पहले हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं क्यूबिट्स, दोनों क्यूबिट्स को हम लेते हैं जो कि हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर क्यूबिट्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं 0 0 से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू पुट इट इन स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे सुपरपोजिशन के स्टेट में होती है, उसके बाद चारों जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, उसके बाद इट गेट्स इनटू सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी कि चारों स्टेट साथ साथ में साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट होती हैं। कैसे, बिकॉज इट ट्राइज टू पुट बोथ द क्यूबिट्स इन अ स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन, जिसकी वजह से वो दोनों क्यूबिट्स चारों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कुछ भी एक नहीं है, सर्टेन नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ में है, तो चारों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। इसको समझो 0 1, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इलेक्ट्रॉन का, जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे तो कहीं बीच में है, ठीक है। तो जैसे ही हमने दोनों क्यूबिट्स को इनिशियलाइज़ किया, ये क्यूबिट नंबर 1 है, ये क्यूबिट नंबर 2 है, तो इसने क्या किया कि दोनों को डाल दिया 50-50% पॉसिबिलिटीज़ में, प्रोबेबिलिटीज़ में, तो ये भी यहाँ से डिस्टेंस पे है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो क्या है, हम जब फर्स्ट 0 0 लिखेंगे, जो पहली पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है, तो हम कैसे लिखेंगे 50% 0 50% 0, जो कि सही है, क्योंकि क्या है 50% 0 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से 50% 0 भी हो सकता है, 50% 0 भी हो सकता है, और 1 वाला है जो सेकेंड वाली क्यूबिट है वो भी 50% 0 है, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं 0 1, तो फर्स्ट वाली जो क्यूबिट है वो 50% हम कह सकते हैं 0 से है, एंड ये जो सेकंड है ये 50% है, सेम फॉर दिस, ठीक है, एंड सेम फॉर बोथ, क्योंकि ये दोनों ही 1 भी है ना, 50-50% है, ठीक है, दोनों 50-50% 1 है, तो इट इज़ इन 50-50-50%। तो ये जो टोटल स्टेट्स हम निकालेंगे 20-25% चांसेस होगा इन चारों में से कोई एक स्टेट आए। मेक सेंस। इसको एक बार ध्यान से देख लो, इस डायग्राम को थोड़ा सा टाइम लेके फिर से देखो और समझो कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। क्यूबिट्स एक सुपर पोजिशन में है जहाँ पे वो प्रोबेबिलिटीज़ को दर्शा रहा है, वो 0 या 1 नहीं है, वो बीच में है। तो अगर बीच में है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 50% 0 है, 50% 1 है तो दोनों ही, हाँ पूरा नहीं है, ऐसे नहीं कह सकता कि 0 ही है, लेकिन कह सकता हूँ कि 0 है, 50% है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ, इसको ऐसा समझो जैसे एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, राइट, लेकिन आधा ग्लास भरा हुआ है, ग्लास फुल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं 50% भरा हुआ है, 50% खाली है। तो इसको इस टाइप से समझो कि 50% ग्लास भरा हुआ है, 50% ग्लास खाली है। तो उस टाइप से ही जो क्यूबिट्स हैं वो एक सुपरपोजिशन के स्टेट में है, तो वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी में है। तो जब हम कह रहे हैं कि ग्लास में पानी है, पानी तो है ना 50%, भले 50% है लेकिन पानी है, सर्टेन नहीं है कि फुल है या बिल्कुल खाली है, बट पानी है, 50% है, और खाली भी है, क्यों, क्योंकि खाली भी 50% है। तो ऐसे ही क्यूबिट के साथ में भी है कि वो सुपर पोजिशन में है, बीच में है, तो 50% 1 है, 50% 0 है, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या है, जो हम क्लासिकल में सर्च कर रहे हैं, तो इट वुड हैव टेकन, अगर लेट से हम यहाँ पे हैं क्लासिकल में और हमको 0 0 फाइंड करना है, तो इट इज़ सर्टेन कि हमको यहाँ से यहाँ तक मूव करना पड़ेगा ढूंढने के लिए। बट अगर हम यही क्वांटम में हैं तो हम कहीं 50% ऑलरेडी बीच में हैं, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटी साथ साथ में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम कहीं बीच में हैं, वी नॉट दैट फार, क्योंकि हम सर्टेन स्टेट में नहीं है ना, तो हम बेटर और जल्दी आंसर को देख पाएंगे, आंसर को ढूंढ पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नाउ क्लोज टू द स्टेट्स जो हमको मेजर करनी है। तो इस एल्गोरिथम में क्या होता है, यहाँ पे व्हाट इट एक्चुअली डज इज, चारों
जो स्टेट है, ये चारों स्टेट्स सुपरपोजिशन में क्रिएट होती हैं, ठीक है। चारों स्टेट्स बन रही होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। उसके बाद व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू फ्लिप द साइन ऑफ द एलिमेंट दैट वी वांट टू सर्च। लेट्स से हमको 4th वाला सर्च करना है, तो मैं इसकी जो साइन होगा एम्पलीट्यूड का उसको मैं फ्लिप, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका जो साइन है वो फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ व्हाट वी जस्ट एम्पलीफाई इट। एम्पलीफाई कैसे करते हैं, यूजिंग सम एल्गोरिथम्स। तो उस एम्पलीफिकेशन से क्या होता है, जो सही आंसर होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहती है, और जो नहीं होता है उसकी कम होती रहती है। तो आफ्टर सर्टेन स्टेप्स हम पहुँचते हैं एक ऐसे प्रोबेबिलिटी पे जहाँ पे हम कहते हैं दैट दिस इज राइट आंसर। लेट्स से 70-80% समथिंग इज कमिंग, ठीक है, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, क्योंकि 100% नहीं आता है। इट इज़ राइट नाउ अभी तक जो करंट सिनेरियो है वहाँ पे क्या है कि इट इज़ द करेक्ट आंसर इज मेजर्ड बाय प्रोबेबिलिटी। 80-90% ये आ रहा है तो हाँ यही सही है। दैट्स वाई आई सेड कि यहाँ पे अभी यहाँ पे 100% इट इज़ नॉट एरर फ्री, अभी देयर आर लॉट ऑफ एरर्स। तो अभी जो एक चीज़ ये है कि दे आर ट्राइंग टू somehow reduce the errors in quantum computing, ताकि हम 100% वी शुड हैव कंट्रोल ओवर दिस होल थिंग, और फिर जो हमारी कैलकुलेशन हो एकदम एक्यूरेट हो। ओके, तो ये क्यूबिट का एक पूरा और क्वांटम कंप्यूटिंग का एक पूरा सा सिनेरियो था जो हमने देखा, जो हमने समझा। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और एक कोड करते हैं। ओके, सो ये बेसिक क्वांटम प्रोग्राम दैट वी हैव जस्ट रिटन पाइथन। ओके, सो यहाँ पे समझते हैं यार कि ये क्वांटम प्रोग्राम क्या कर रहा है। विल जस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ इट। सो यहाँ पे what we are doing is we are just using an SDK named Qiskit which is provided by IBM. So IBM के कुछ अपने quantum computers हैं, and to access it and to run some programs on it, it provides you with an SDK. So what we are doing in this program is we are actually trying to initialize a quantum circuit with 2 qubits. 2 qubits के साथ में हम यहाँ पे quantum circuit को initialize कर रहे हैं, and then we are performing an operation on the zeroth qubit और the first qubit. उसमें हम क्या करेंगे, we'll try to put it in a state of superposition, और जो हमारा second qubit है उसको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, I mean we are not performing any operation on it. तो उसका अगर हम आउटपुट देखें तो it would be something like जो फर्स्ट नंबर का एक्चुअली आपका जो क्यूबिट होगा उसमें there would be no change, और जो 0th नंबर का आपका क्यूबिट होगा इट वुड बी समवेयर इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ 0 and 1. सो दैट इज़ अबाउट दिस प्रोग्राम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट समथिंग कि अगर आप उसको रन करोगे तो आपको एकदम से आउटपुट मिल जाएगा, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग एंड देयर वुड बी मल्टीपल पीपल यूजिंग इट। सो जैसे आप इसको रन करते हो तो इसका एक जॉब क्रिएट होती है एंड दैट इज़ केप्ट इन अ क्यू, और जैसे ही फिर 1 by 1 वो सारी जॉब्स रन होती हैं तो फिर आपकी जॉब की टर्न आती है आपके प्रोग्राम की, एंड देन इट एक्सिक्यूट्स इट। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड हाउ कैन एक्चुअली चेक दैट थिंग, विल सी दैट। ओके, सो यहाँ पे विल जस्ट नाउ गो टू दिस। ओके, सो जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे quantum.ibm.com, सो मे बी इनिशियली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट साइन अप, एंड इट इज़ अ बेसिक साइन अप। उसके बाद यू लैंड अप इन दिस पेज, ठीक है। यहाँ पे आपका API टोकन है विच विल बी यूजिंग इन है, ठीक है। उसके बाद here it is written that क्या ये like these are jobs that I have already run, okay, and यहाँ पे कुछ कंप्यूटर इन प्रोग्रेस है, एंड देन देयर आर सम इन पेंडिंग, ठीक है। और दिस इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर जैसे हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया था। ओके, सो जस्ट एक्सप्लोर दिस डैशबोर्ड, और यहाँ पे देयर आर मल्टीपल, एज आई वाज टेलिंग यू, देयर आर मल्टीपल मशीन्स। सो यहाँ पे इफ यू गो हियर, ओके, कंप्यूटर रिसोर्स, तो यहाँ पे here are multiple machines, so you can just check them out. Some of them can be used for free, but some of them are not under the free version, like you cannot access this thing if you are a free tier, so you cannot also access this thing. जैसा ब्रिस्बेन वाला अपना था तो ये हम एक्सेस कर पा रहे थे, एंड ये वाला भी आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कितनी अभी पेंडिंग वर्कलोड्स हैं, 11 जॉब्स आर देयर टोटल। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो दिस वॉज आर बेसिक क्वांटम प्रोग्राम। यहाँ पे हमने देखा कि हाउ वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ सर्किट, एंड देन वी आर ट्राइंग टू रन इट ऑन अ फिजिकल क्वांटम computer. So congratulations, maybe this was your first quantum program, and thank you so much for watching the video.